Now, we had already understood this concept, the mathematical proving of the upthrust. हम लोगों ने अपथ्रस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, अपथ्रस्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, फिर इसका कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर लिया था। सो पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने इन सब चीजों को डिस्कस कर लिया है। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी था। अब हम लोग समझने वाले हैं आगे buoyancy के बारे में। So what is buoyancy? So it's not a very big topic, only a very small one which we have to keep it in mind while we discuss on a buoyant force. तो जब हम लोग buoyant force के बारे में पढ़ते हैं, then we also go for the buoyancy, because buoyancy is also in your book, and it is nothing but it is the property of the fluid due to which it exerts the upthrust. ठीक है, तो हम लोगों ने अपथ्रस्ट के बारे में समझा है, हम लोगों ने बॉइंट फोर्स के बारे में समझा है, जहां पर कि बॉइंट फोर्स को हम लोगों ने कहा था इट इज द अपवर्ड फोर्स और अपथ्रस्ट व्हिच इज एक्टिंग बाय अ फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट व्हिच यूज्ड टू बी सबमर्ज्ड इन इट। तो जब भी हम लोग किसी भी फ्लूइड में किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तो वो एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाती है और इसको हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं। So the tendency or the property due to which this upward force used to be applied by a fluid is called to be the buoyancy. So please keep this thing in mind. It is the tendency or the property of a fluid due to which it used to exert a force in the upward direction. So it is nothing else, but it is only the property. And this we have to study, because while we used to go for the understanding of upthrust and while we discuss about the buoyant force, then buoyancy is also a topic which we used to see in the book. Now, let's understand the concept of the buoyancy with regarding to the situation of flotation. So as most of the students were asking for the problems regarding to this particular topic, so we will understand about that how the flotation used to go on, or how the flotation we used to observe, and what is the role of the buoyant force in the situation of flotation. So let's discuss about this thing. देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने ये समझा है कि buoyant force जो है वो एक फोर्स है जो कि अप्लाई होती है किसी भी तरह के फ्लूइड के थ्रू, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके अंदर सबमर्ज करते हैं। देखो, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तब उसकी एक वेट होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक वेट है, और ये वेट जो है ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है, हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है, और इसके अगेंस्ट में अप थ्रस्ट अप्लाई किया जाता है बाय द fluid or through the fluid in which that object has been submerged. Now we have to understand a relation between the weight of the object and the upthrust experienced by the object. So we can go for 3 different cases. Okay, so the first case we can understand where the buoyant force is less than the weight of the object. This is the first case I am telling. So you just go for it as with the comparison of balanced and unbalanced force. So if there is a balanced force, then there is no resultant action. But if there is an unbalanced force, then there is a resultant action. So here, if you see in the first case, I'm taking where the buoyant force is less than to the weight of the object. So as we know for this thing, that the weight of the object used to act in the downward direction, and the buoyant force used to act in the upward direction. So if the force acting in the downward direction is greater, then what will happen? We will observe a situation that will cause a resultant action towards the surface of the water, or towards the base of water. एक सिंपल सी लॉजिक है, एक सिंपल सा लॉजिक जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के कंडीशन के हिसाब से। तुम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, अनबैलेंस फोर्स के कारण एक रिजल्टेंट एक्शन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर केस 1 ले रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि buoyant फोर्स जो है वो छोटा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है, और buoyant फोर्स जो है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बड़ा है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बड़ा है
अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स से, देन आवर रिजल्टेंट एक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम लोगों का जो रिजल्टेंट एक्शन होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की तरफ होगा। देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, we will observe the object is going to sink down, it is going to sink down, वो वहां पे डूब जाएगा, वो वहां पर कंप्लीटली डूब जाने वाली है। फिर से बता रहे हैं, समझने की कोशिश करो, अनबैलेंस्ड फोर्स का लॉजिक लगाना है यहाँ पर। हम लोगों को पता है बैलेंस्ड फोर्स से किसी तरह का कोई रिजल्टेंट एक्शन नहीं होता है, तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण एक रिजल्टेंट एक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर केस 1 ले रहे हैं, जहां पर हम एक ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं जहां पर कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर है देन टू द बॉइंट फोर्स। और जैसा कि हमको पता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है और बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अगर मेरे लिए बड़ा है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चले जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट एक्शन है वो होगा टू द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द फोर्स की तरफ, और ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स किधर है, दैट इज टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट इफ आई विल गो फॉर द सेकंड केस, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ केस where the buoyant force is equals to the weight of the object। अगर buoyant force जो है वो इक्वल हो जाए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। फिर से जैसा कि हम लोग को लॉजिक पता है कि अगर दोनों तरफ का फोर्स यानी डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा, देन व्हाट वी विल बी ऑब्जर्विंग, वी विल ऑब्जर्व एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम लोग यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखेंगे वेयर वी विल ऑब्जर्व that the object is neither sink down completely over there or nor it is on the surface of the water. So where it will be, so say as for example there is a container, suppose for example there is a container which has been filled with water, okay, so just a minute here, so suppose this is filled with water, इसको हम लोगों ने पानी से भर दिया है, ठीक है, और कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जहां पर कि उसका वेट और उस पे लगने वाला पॉइंट फोर्स दोनों इक्वल है। सो से एज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया है, और ये जो ऑब्जेक्ट लिया है इस यहां पे हमको ध्यान देने की बात है कि जो इस पे लगने वाला जो पॉइंट फोर्स है, यानी इस पे लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है वो, और इसका खुद का वेट, ये दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों ही इक्वल हैं। सो अंडर दैट कंडीशन व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन ऑन द बेस ऑफ द वाटर। ये नीचे नहीं आ जाएगा, ये यहाँ पे डूब नहीं जाएगा, ये कंप्लीटली सिंक नहीं होगा, इट इज ओवर हियर पार्शियली फ्लोटिंग एंड पार्शियली सिंकिंग। So we can say that it is a situation of flotation। हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉइंट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड में है। इक्वल मैग्नीट्यूड में होने के कारण वी आर ऑब्जर्विंग एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, and under equilibrium situation we will not observe that the object is going to sink down, okay, but suppose for example if we take another condition, the third situation I'm taking over here, third case if I will take, where the buoyant force becomes greater than to the weight of the object। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए जहां पर कि हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो बॉइंट फोर्स है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए, फिर से हम लोग वही अनबैलेंस फोर्स का ही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली जो फोर्स है उससे ज्यादा है अपवर्ड लगने वाली फोर्स। सो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, द रिजल्टेंट एक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हम लोगों को दिखेगा कि रिजल्टेंट एक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है,
So what we will observe? We will observe that the object is floating over there in a proper way. Okay, so it is floating on the surface of the water. Okay, we will observe that particular object is floating on the surface. So such as, for example, this is, again, I'm taking that container of water, and in that one, if you will take that particular object, you will observe that it is going to float on the surface over there. ये ऊपर में वहां पे तैरेगा. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Because of that unbalanced force. So the downward directional force is less over there than compared to the upward force which is acting. तो यहाँ पर जो upward force लग रही है, यानी जो buoyant force लग रहा है, वो काफी ज्यादा है उस weight से. तो इसके कारण क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट इजीली वाटर के सरफेस पे, एकदम अपर सरफेस पे, वो वहां पर फ्लोट कर सकता है. So this is the basic concept of the flotation regarding to the buoyant force. When we establish this relation, then we can understand that when any object is going to sink down or when any object is going to float on the surface. So as students were asking questions regarding to this one, with different relation with the buoyant force, that how it is there that the buoyant force is equals to the weight of the object and it is floating over there. So that is the thing which we need to remember over here, that we have to just put the logic of unbalanced force. सिंपल सा अनबैलेंस फोर्स का लॉजिक लगाना है और उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. तो देखो हम यहाँ पे तुम लोगों के लिए नोट्स में भी दिए हुए हैं कि अगर अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाती है तो वहां पे रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो जीरो हो जाता है. तो रिजल्टेंट फोर्स जैसे ही जीरो हो जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा कि वहां पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है और इसका मेजर पोर्शन जो होगा वो वाटर के नीचे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा. और जैसे ही अपथ्रस्ट जो होगा वो अगर छोटा हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तब इसका पूरा का पूरा पोर्शन ही वो नीचे चले जाएगा, यानी वो सिंक कर जाएगा. लेकिन अगर ये फेनोमेना रिवर्स कर गया, अगर ये अपोजिट सिचुएशन में चला गया, तब हम लोग वहां पे देखेंगे कि वो प्रॉपरली फ्लोट कर सकता है. सो बुक्स पे ये लिखी हुई रहती है कि इफ द buoyant force is equals to the weight of the object, then also it is floating, and buoyant force is greater than to the weight of the object, then also it used to float. But there is a slight difference over there. एक छोटा सा बस डिफरेंस है जो समझने की जरूरत है कि अगर buoyant force कंप्लीटली इक्वल हो जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि द बॉडी गेट्स वेटलेस. The body gets wetless, and because of that it will be partially sinking and partially floating on the surface of the water. वो नहीं पूरी तरह से डूबा हुआ रहेगा, नहीं वो पूरी तरह से तैर रहा होगा on the upper surface of water. It will come on the upper surface of the water when the buoyant force will be greater than to the weight of the object. But if we will observe that the buoyant force is less than to the weight of the object, then we will observe that the object is going to sink down in liquid. Are you getting this thing, students? ये चीज समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Now I think the doubts are clear. The doubts which you all had asked for, जो doubts तुम लोगों ने पूछा था, अब क्लियर है. रिलेशन टू द buoyant force with the weight of the object. बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उससे जो रिलेशन करते हैं हम लोग अपथ्रस्ट को, ये चीज क्लियर हो रही है या फिर यहाँ पे अभी भी कोई डाउट है? अगर अभी भी कोई डाउट है then you can ask if any doubt is there. No? Then I will go for the yes. The condition for a body to float or sink in a fluid के टॉपिक में एक स्टेटमेंट है कि if the upthrust increases as the submerged portion of the body inside the fluid increases and becomes maximum when the body is completely immersed in the liquid, inside the liquid. Okay. Now, okay, चलो ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है. You may had seen a ship or a boat. तुमने कभी ना कभी कोई शिप या बोट तो देखा होगा, ठीक है?
Yes, sir. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर भी इस इमेज में हम एक छोटे से शिप को लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग इस शिप को देखते हैं तो इस शिप का एक एक हिस्सा हम लोगों को नहीं दिखता है, जो कि इसके नीचे है। ये पानी के नीचे एक हिस्सा है, इसका एक पोर्शन है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा होता है। तो ये जो पोर्शन जो पानी के अंदर फिलहाल है, ये इतना बॉइंट फोर्स अभी के लिए क्रिएट कर रहा है, या फिर ये इतना अपथ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, जिससे कि जो जो रिमेनिंग पोर्शन का वेट है, जो रिमेनिंग पोर्शन का वेट है, वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, वो बैलेंस हो जाए ताकि वो वहां पर फ्लोट कर सके। Now, suppose for example, for a hypothetical condition, I'm just telling, suppose for example, right now in this ship, suppose there are 20 passengers. Okay, there are 20 passengers over there, and the ship is balancing them. But suppose I say that, say 30 more passengers have been board on this ship. 30 और passengers इसमें board हो गए. So what will happen? The weight of this ship will increase. इस ship का weight जो होगा वो बढ़ेगा. So due to the increase in the weight of the ship, what will happen? It will exert more force in the downward direction. वो और force नीचे की तरफ लगाएगी. Because of that, what will happen? It will sink a little more in water. वो थोड़ा सा और पानी में sink down कर जाएगा. And because of that, may possible a little more buoyant force it is experiencing over there. And if it is till the safe level, अगर वो safe level तक रहेगा, तब वहां पर क्या होगा? वो शिप इजीली वहां पर सेल कर सकती है, वो शिप वहां पर इजीली जा सकती है. But suppose for example, I say that earlier there were 20, now it came 30, it became 40, sorry 50. Now suppose for example, if I say more 30 passengers will be added over there, then what will happen? It will become a very dangerous situation, because the weight of the body has been increased a lot. And when this weight is putting the force in the downward direction, then the body is not able to exert, or it is not able to receive the right amount of buoyant force. Then what will happen? The ship will sink down over there. तो जैसे कि तुम लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि कोई बोट जो है वो डूब गई है, और बोट डूब जाने के कारण कई सारे लोग मर जाते हैं. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कोई भी बोट जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट के वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए किया जाता है, और जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा वो उतना अपथ्रस्ट यानी उतना बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. उसको हम लोग जितना डीप में लेकर जाएंगे, उसको जितनी गहराई में लेकर जाएंगे, उसके थ्रू लिक्विड उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगा, और जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा वो उतना ज्यादा बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. बट इट हैज अ लिमिट. It has a limit. We can't take the ship very down over there. If we will take it more than its safe level, then what will happen? The ship will sink down. So as you were saying that it has been given in the book that as the object used to be taken more and more inside, we used to observe that it is experiencing more and more buoyant force. So what does that means? That actually means that as we are taking the object more and more inside, it is displacing more and more water. And as we had studied earlier, that as much as amount of water will be displaced by the submerged portion of a body, that much of buoyant force the body is going to experience. Okay, but it has a limit. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. Anything else till here? So the line I have sent is given in the explanation of pushing the cork into water.
So it satisfies for only that experiment. Yes, yes, it goes for the for that one only, because see, if you will go for a cork or for a, suppose for example, a piece of thermocol, then you will observe that under that situation, the weight which is acting in the downward direction is comparatively very much less than to the upthrust which is acting, sorry, the upthrust acting on the upper surface. So due to this situation, what will happen when you take the cork deep in water, it will always pop out. Or if you will take a piece of thermocol inside the water, you will observe that it is going to pop out because of the upthrust which is acting over there. Okay, ठीक है, समझ में आ रही है? So when buoyant force is greater than y, it is written the weight and buoyant force is equal. अच्छा, देखो इसीलिए हम बताए, ये देखो ये एक छोटा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाता है बच्चों को, ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाता है बुक में, ये इसीलिए लिखा हुआ रहता है। देखो हम भी इसीलिए ये स्टेटमेंट यूज किए हैं कि buoyant force is greater than to the weight of the object और buoyant force is equals to the weight of the object, then the object used to float। ये चीज बोलने का मतलब क्या है, इसको यूज करने का मेन रीजन क्या है? देखो हम लोग जब ये कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पानी में डाला, सपोज फॉर एग्जांपल तुमने एक कॉइन लिया और उस कॉइन को तुमने पानी में डाला, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट द कॉइन इज गोइंग टू सिंक डाउन, वो नीचे की तरफ सिंक कर जाती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, क्यों वो सिंक कर जाती है? ये सिंक इसीलिए करती है क्योंकि कॉइन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, लेकिन वाटर ने अपवर्ड डायरेक्शन में उतने अमाउंट का फोर्स अप्लाई नहीं किया, जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था। हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है कि whenever we are putting a force on any object, then the object also exerts equal and opposite amount of force। तो जब तुमने कॉइन को पानी में डाला तो कॉइन के वेट ने एक फोर्स क्रिएट किया, क्योंकि वेट फोर्स होता है, वेट फोर्स होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो वाटर ने उतना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं किया, thus what we observe that it is going to sink down because the resultant action will be in the direction of the greater force, तो वो नीचे की तरफ चली जाती है। But if we come for the Newton's third law, अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ पे चले आते हैं और हमने ये कहा कि मैंने एक कॉइन डाला पानी में और पानी ने उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो वहां पर एक बैलेंस सिचुएशन आ जाएगी। तो जैसे ही बैलेंस सिचुएशन आ जाएगी तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब हम लोग क्या देख सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कॉइन इज बैलेंस्ड ओवर देयर, कॉइन इज नॉट सिंकिंग डाउन, यानी वो जो कॉइन जो है वो नीचे सिंक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बुक में ये देखते हैं, ये कहा जाता है कि the buoyant force is equals to the weight of the object, which creates an equilibrium condition. It is not written in the book, but I'm just explaining you with that one. It is creating an equilibrium situation which makes the coin balanced, or it makes the object balanced on the surface of the water. Is it clear? तो सर उस कंडीशन में कॉइन वेटलेस हो गया? हाँ, यस, हम ये बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में कॉइन जो है वो वेटलेस हो गया है। यस, वी कैन। लेकिन सर कॉइन तो एग्जर्ट कर रहा है ना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो वेटलेस कैसे हो गया? अच्छा, अब वेटलेस कैसे हो गया, चलो ठीक है, समझते हैं हम लोग इसको। जब हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं, वेट क्या है? वेट एक अपेयरिंग कंडीशन है। वेट इज एक्चुअली एन अपेयरिंग कंडीशन, वो तो एक अपेयरिंग कंडीशन है ना। वेट कहां से निकल के आता है? वो मास से निकल के आता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से निकल कर आता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे लेते हैं, से एज फॉर एग्जांपल वो निकल के आया 60 न्यूटन, और उसी ऑब्जेक्ट का वेट जब हम मून पे करते हैं तो वो निकल के आता है 10 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है दोनों ही जगह पर, तो वेट कैसे घट गया वहां पर? वेट इसीलिए घट गया क्योंकि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल पुल था वो ज्यादा था मून के ग्रेविटेशनल पुल से।
ठीक है, तो ठीक उसी तरह से समझो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम धरती पर पुल को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रेसिस्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हम इसीलिए हमेशा वो एग्जाम्पल तुम लोगों को बताते हैं जहां पर कि तुमने स्कूल बैग अपने शोल्डर पे रखा हुआ है, पूरा का पूरा लोड तुम्हारे शोल्डर पे आ रहा है, तब तुमको स्कूल बैग का वेट एहसास होता है। लेकिन अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड ने उस बैग को नीचे से ऊपर की तरफ पुश किया, तो तुमको वो बैग जो है वो वेटलेस लगने लगता है, even though the bag is present over there and bag is containing everything over there, but you feel that the weight is not over there. So why it is so? It is because you are resisting or you are opposing the force of gravity with or by some other force. ठीक है? Is it clear? Yes sir. ओके, और यही चीज होती है। देखो इसी चीज के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जब भी हम लोग किसी भी चीज को पानी में लेते हैं, सो इट अपियर्स टू बी लाइटर इन वेट, वो हम लोगों को कम वजन का वहां पर अपेयर होता है। तो क्यों कम वजन का अपेयर होता है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फेनोमेना ओनली। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट व्हेन वी आर टेकिंग दिस वन, व्हेन वी आर टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट इन द एयर and we are measuring it in the weight in the spring balance, we get some weight. यहाँ पे हम लोगों को कुछ इसका weight मिलता है। say as for example, suppose for हम मान लेते हैं कि ये 20 न्यूटन एयर में मिला हमको, 20 न्यूटन स्प्रिंग बैलेंस में हमको इसका एयर में मिला। सेम ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पानी में डालेंगे या किसी दूसरे लिक्विड में डालेंगे, तो वो लिक्विड इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगी, एक अपवर्ड फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट कर रही है। सो ये अपवर्ड फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट क्रिएट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लिफ्ट व्हाट विल हैपन, आइदर दिस वेट विल डिक्रीज और इट कैन बिकम जीरो। ये एकदम डिक्रीज भी हो सकती है और एकदम जीरो भी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग वहां पर कहते हैं कि द बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर इट बिकम्स फ्लोटिंग इन कंडीशन। पहला रीजन। अच्छा, एक और रीजन भी है, एक चीज और समझो। अगर हम ये वाला स्टेटमेंट हर जगह पे दें, अगर हम ये वाला स्टेटमेंट हर जगह पे देते हैं, इफ बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन टू द वेट ऑफ द बॉडी, तब एक सेंस ये भी निकल कर आ सकता है, कभी कभी ये बच्चों के मन में आता है कि सर अगर बॉइंट फोर्स बड़ा है वेट से, बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वेट से, वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, then that object should be jump out. तब तो उस ऑब्जेक्ट को तो वो वहां से उछल जाना चाहिए, because upward force is much greater over there. So देखो ये जब सरफेस पे आती है, जब सरफेस पे आती है तब ये बैलेंस्ड रहती है, लेकिन अगर इसको हम पुश करें नीचे की तरफ, तब हम देखेंगे कि वो पॉप आउट होती है। इसका एक एग्जांपल तुम लोगों को बताते हैं। जैसे अभी भी एक डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि एक कॉर्क को अगर पानी में डिप किया जाए, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल यू टेक अ कंटेनर, एक कंटेनर ले लो कोई भी तरह का, एंड फिल इट विथ वाटर। ओके, उसको पानी से भर दो। इट कैन बी बिग और स्मॉल, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। नाउ यू टेक अ पीस ऑफ थर्मोकॉल, एक छोटा सा थर्मोकॉल का टुकड़ा ले लो, ठीक है, एंड व्हाट यू डू, यू ट्राई टू मेक इट पुट inside the water. Okay, as you will try to put it inside the water, you will observe that it pops out. वो बाहर की तरफ उछल कर बाहर आ जाती है, वो बाहर हमेशा आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अप्लाई हो रही है। रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अप्लाई होने का मतलब क्या हुआ? वी कैन से दैट द बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, as the weight of the object acts in the downward direction, but the buoyant force acts in the upward direction. So what happens? The weight of the object becomes smaller than to the resultant action. तो resultant action force किधर की तरफ लगेगी? वो ऊपर की तरफ अप्लाई होगी, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट को वो बार बार ऊपर की तरफ धकेल दिया जाएगा, वो ऊपर की तरफ वो बाउंस बैक कर जाएगी, या वो ऊपर की तरफ पॉप आउट हो जाएगी। ओके, are you getting these things?
Is it clear to everyone? Is there any doubt? Yes, sir. Is there any doubt till here? यहाँ तक कोई doubt है तो बताओ. Do anyone is having any problem? Any problem? No? Okay. So, सर appearing weight क्या होगा जब बॉडी सिंक करेगा? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं apparent weight कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. उसी के बेसिस पर तुम खुद ब खुद इसको कैलकुलेट कर लोगी. जब हम लोग apparent weight कहते हैं, सॉरी यहाँ पे weight, apparent weight जो हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग apparent weight लिखते हैं the buoyant force of buoyancy minus the weight of the object. ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं. तो जब हम लोग कहते हैं कि the object has been sink down, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ सिंक कर गया, वो नीचे की तरफ डूब गया, तो जैसे ही वो नीचे की तरफ डूबेगा, जैसे ही वो नीचे की तरफ डूबेगा, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर वो नीचे की तरफ डूब रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइंट फोर्स है वो छोटा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से. तो जैसे ही हम लोग इसका सम कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा कि ये निकल कर आ जाएगा नेगेटिव में, समथिंग ये निकल के आ जाएगा नेगेटिव में. लेकिन अब इसमें एक सवाल आएगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट द वेट कैन बी नेगेटिव. सो सी, इट इज नॉट इन नेगेटिव, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग इट इन नेगेटिव. हम लोग इसको समझ रहे हैं नेगेटिव के फॉर्मेट में. कैसे? तो इसको देखो, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं. सपोज मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 50 न्यूटन, जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. उस ऑब्जेक्ट पे जो बॉइंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, से एज दैट इज 30 न्यूटन. वो 30 न्यूटन का है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. तो अगर हमको अपरेंट वेट निकालना है तो हम निकालेंगे 30 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन. फिर देखो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वेट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा पॉइंट फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो व्हाट वी आर गेटिंग, -20 न्यूटन. सो व्हाट डज दिस -20 न्यूटन डिनोट्स? The -20 Newton denotes that the force of or the resultant action is in the downward direction. यानी ये जो ऑब्जेक्ट नीचे डूबेगा, ये किसके कारण से डूबेगा? ये डूबेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा 20 न्यूटन. ये जो इसमें एक्स्ट्रा 20 न्यूटन है, 50 न्यूटन को ओवरकम करने के लिए 30 न्यूटन का फोर्स आया, लेकिन 50 न्यूटन के अंदर से, इसको समझो इस तरह से, 50 न्यूटन के अंदर से 30 न्यूटन को ओवरकम कर गया बॉइंट फोर्स, लेकिन जो उसका 20 न्यूटन जो नीचे की तरफ लग रहा है वो अभी भी एक्टिव है, जिसको कि हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रैग करके लेकर चला गया, यानी नीचे की तरफ से खींच कर लेकर चला गया. तो इसके कारण हम लोग उसका अपरेंट वेट बोलेंगे -20 न्यूटन. एंड -20 न्यूटन का मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है? द एक्स्ट्रा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द एक्सेस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन टू द बॉइंट फोर्स व्हिच इज रिजल्टिंग टू द ड्राउनिंग डाउन और द सिंकिंग डाउन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वाटर. इज इट क्लियर? यस. Yes, sir. Okay, so you all just go through these topics because our class is going to finish out in just a minute only. So you all just go through all these topics. I will again discuss about these topics again in the next class, and wherever you have any kind of doubt or any kind of problem, you just feel free to ask me. Okay, so we will continue the chapter in the next class. Okay, so till that time, thank you everyone. Bye for now. Good night.